Hi friends, welcome to my English Literature with Priya YouTube channel. This is Priya this side. Now, our today's topic is Indian literature. In this video, we are going to cover Indian literature unit of UGC NET English exam, and our topics are Indian literature, Oriental Occidental controversy, from which where starting point of English Indian literature started. Now after that, after Oriental Occidental controversy, we are going to talk about Thomas Babington Macaulay, who is the responsible person to bring English in our schools, in our educations. We are going to talk about Macaulay's Minutes of Education, which is very important work on basis of English, how English came in India. You will know about all this in upcoming video. Now, the third topic is downward filtration theory and introduction of English language in India. Now, so on, our class will be of 30 minutes and daily I am going to upload a 30-minute class in which we are going to study of units like Indian literature, British literature, all literature with my own created notes, and I am going to cover all topics deeply. So this is my first video on English Indian literature. Now to start with, Indian literature is a recent phenomena in context of English, because English came in India in very recently when Britishers came in India. It started in 18th century when Indian English literature are studied in our education. Now, अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स, हाउ ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, हाउ दे colonized us, how freedom fighters arouse, how they get our nationalism, how they got patriotic, and how they got freedom, how we got freedom. Now we have two epics also, which is Ramayana and Mahabharata. Caste system also, we have a huge impact of India on caste system like Brahmins, Kshatriya, Shudra, Dalits. Now in upcoming video we are going to talk about Dalit and diaspora writers also in Indian literature unit. Now in Indian literature we talk about partitions also, partition novels. We have partition novels in Indian literature. So now for our first topic in about Indian literature, how Indian English literature started is from Oriental Occidental controversy. Now what is Oriental Occidental controversy? If we talk about Oriental Occidental controversy, we are talking about Oriental Occidental controversy. Who is Oriental? Who is Occidental? Now, Orientals are those who support indigenous knowledge and vernacular language, which is led by H.H. Wilson and S.D. Prinsep. Orientals वो थे जो इंडिया में वर्नैकुलर लैंग्वेज को लाने के लिए सपोर्ट में थे, जैसे कि हिंदी, संस्कृत। वर्नैकुलर लैंग्वेज वो होती है जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में अपने सर्कुलर में बोलते हैं। तो
ओरिएंटल वो थे जो कि वर्नैकुलर लैंग्वेज को अपने एजुकेशन में लाना चाहते थे, इंडियन एजुकेशन में लाना चाहते थे। ऑक्सीडेंटल उसी के उल्टा, ऑक्सीडेंटल को एंग्लिसिस्ट भी बोला जाता है। ऑक्सीडेंटल वो लोग थे जो सपोर्ट करते थे वेस्टर्न साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर को, लाइक चार्ल्स ट्रेवेल एंड एल्फिंस्टन। नाउ Oriental and Occidental controversy debate started, but when it resolved by Anglicist win. ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल में ऑक्सीडेंटल जीत जाते हैं, तभी तो हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडियन लिटरेचर में या इंडिया में। इसका कारण क्या है? कारण है ऑक्सीडेंटल का उस समय जीतना और इंडियन लिटरेचर में इंग्लिश का सुपीरियॉरिटी बढ़ाना। इस कंट्रोवर्सी 80s में स्टार्ट हुआ था और इसका बस एक ही क्रक्स था कि इंडिया में किस तरह की एजुकेशन को, किस तरह की लैंग्वेज को प्रोवाइड किया जाना चाहिए हमारे एंसेस्टर्स को। इसमें हम एक नाम जानते हैं, विलियम बेंटिक, जो हमारे उस समय के इंडिया के गवर्नर जनरल होते थे। तो विलियम बेंटिक एक आदमी मकॉले, जिसका नाम था मकॉले, तो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 19th century agrees on the Macaulay advice of teaching English in School of India. Now who is Macaulay? Thomas Babington Macaulay. Thomas Babington Macaulay is an Western person, Occidental Anglicist. Now, he once said that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Now, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक छोटी सी लाइब्रेरी यूरोपियन लिटरेचर की, मतलब इंग्लिश लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की, वो भी इंडिया के पूरी लाइब्रेरी से भी बहुत ही, इंडिया के पूरी लाइब्रेरी को भी क्रिएट कर दिया जाए, इंडिया के सारे लिटरेचर को, अरेबिया के सारे लिटरेचर को एक लाइब्रेरी में ले दिया जाए, उससे भी ज़्यादा गुड कौन होगा? यूरोपियन लाइब्रेरी होगी, एक सिंगल सेल्फ होगा यूरोपियन लिटरेचर का। ये बहुत ही क्रक्स आइडिया है, बहुत ही बेबिंगटन मकॉले, जो कि इंडिया बहुत ही कम आए थे, उन्होंने एक ऐसा आइडिया दे दिया, एक ऐसा फिलॉसफी दे दिया जो कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज जिसके वजह से वो होंगे। उन्होंने ये आइडिया मिनट्स ऑफ एजुकेशन उनके एक वर्क में दिया था, जो 1835 का वर्क मिनट्स ऑन एजुकेशन में, उन्होंने ये आइडिया 1835 का वर्क मिनट्स ऑन एजुकेशन में दिया था। Now, English Education Act General Clause 43 of the Chartered Act of 1813 में हमारे इंडियन लिटरेचर में इंग्लिश का प्रेजेंस आया, इंग्लिश मैंडेटरी हुई। Now, talk about Thomas Babington Macaulay. He was born in 1800, died in 1859. He is an historian, essayist, orator, statements. These are. Now, Babington Macaulay के बारे में हमें जो याद रखना है, उनकी मिनट्स ऑफ एजुकेशन, उनका वर्क मिनट्स ऑफ एजुकेशन, जिसने एक अटैक किया था इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पे और उन्हें बहुत ही नीचे स्तर का बताया था। बेबिंगटन मकॉले इंडिया आए थे कमिश्नर ऑफ ब्रॉड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में। 1834 ये डिप्यूटेड हुए इंडिया में, लॉ मेंबर इन गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
Later he appointed as chairman of General Committee on Public Institution. So these are some history of Babington Macaulay. Macaulay का एम क्या था? To develop such personalities who are Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in moral and intellect. वो चाहते थे कि वो सोचते थे, बैबिंगटन मकॉले का आइडिया ये था कि हम इंग्लिश को इंडिया में लाते हैं, हम इंडियन पीपल्स को उनके ब्लड, उनके कलर को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके टेस्ट को, उनके ओपिनियन को हमारे सुपीरियर इंग्लिश से बदल सकते हैं और उन्हें अपना बना सकते हैं। सारे वेस्टर्न लोग ये सोचा करते थे कि हमारा थिंकिंग, हमारा वे ऑफ स्टाइलिंग, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर सुपीरियर है, और वो लोग जो ईस्टर्न लोग हैं, जैसे कि इंडियंस को वो माना करते थे, इंडियन अफ्रीकन, जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया, जिन पे उन्होंने राज किया है, उन्हें वो इन्फीरियर माना करते थे, उनके लैंग्वेजेस को वो इन्फीरियर माना करते थे। नाउ अब आप जान रहे हैं कि ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी क्या है। ये स्टार्ट हुई थी 1800 में। ओरिएंटल वर्नैकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। और ये ऑक्सीडेंटल को एंग्लिसिस्ट भी कहा जा सकता है। एंग्लिसिस्ट जीत जाते हैं। विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल है, वो मकॉले की बात पे, मकॉले मिनट्स ऑफ राइट एजुकेशन के वर्क से, उनके थॉट्स से एग्री कर जाते हैं और हमारे इंडियन एजुकेशन एक्ट लाते हैं, एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाते हैं जनरल क्लॉज 43 में, और हमारे इन लिटरेचर में इंग्लिश आ जाता है। अब आगे चलते हैं। अब एक थ्योरी है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जब हम अपर कास्ट को पढ़ाते हैं तो मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट खुद ही इमिटेट करके पढ़ते हैं। लाइक मकॉले का कहना था कि हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास को अपने इंग्लिश का एजुकेशन नहीं देंगे, हम किन्हें देंगे, हम अपर क्लासेस को देंगे। अपर क्लासेस आर द टारगेट फॉर द स्प्रेडिंग वेस्टर्न लैंग्वेज एंड कल्चर इन इंडिया। व्हाई? Because in India all people sees upper class as a superior thing। हम अपने से बड़े लोगों को, बड़े रिच लोगों को, पॉलिटिशियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो भी रिच हमारे से रिच हैं, अपर क्लास कास्ट के हैं, उनके किए गए चीज़ों को सही मानते हैं और खुद भी उसमें अपने में इमिटेट करते हैं उस चीज़ों को। तो अपर क्लास अगर इंग्लिश पढ़ेगा तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास खुद ही उसे एब्जॉर्व कर लेंगे और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नाउ दिस इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अपर क्लास पढ़ेगी इंग्लिश तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास धीरे धीरे उनमें भी इंग्लिश का ग्रोथ होगा। ये मकॉले का एक थ्योरी थी, या किसी भी ऐसे वेस्टर्न का थ्योरी और उस समय के लोग का थ्योरी जो कि चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश आए, जो कि इंडिया को, इंडियन पीपल्स को सिविलाइज्ड बना देगा। जैसे कि वेस्टर्न सोचते थे कि हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे अनकॉलोनाइज्ड लोगों को कॉलोनाइज्ड बनाना। अब दूसरा टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू इंडिया। इसमें नाम आता है राम मोहन रॉय का, जो इनका बॉर्न हुआ है 1823 में। वो एक सोशलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। नाउ इनका क्या कहना है? अब राम मोहन रॉय एक इंडियन होते हुए भी ऑक्सीडेंटल हैं या क्या है, ओरिएंटल है या ऑक्सीडेंटल है,
ये इंडियन होते हुए भी ऑक्सीडेंटल है, ऑक्सीडेंटल या एंग्लिसिस्ट है, बिकॉज ही थिंक्स दैट coming of English in India is a very good thing because the Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness. उनका कहना था, राम मोहन रॉय का कहना था कि इंग्लिश अगर आती है इंडिया में तो वो सही है, क्योंकि संस्कृत कभी भी वर्नैकुलर लैंग्वेज नहीं रही है इंडिया में, या कोई भी वर्नैकुलर लैंग्वेज कोई भी नहीं रही है इंडिया में। इंडिया बहुत सारे लैंग्वेजेस से घेरा बटा हुआ है। सो इंग्लिश कैन बी द गुड थिंग टू compete with other country. So if we consider English, it is a good for India. So Ram Mohan Roy is an special case in which he is an Indian but support Anglicist. Now, because of coming of English in India, presidency colleges started in 1855, one of Calcutta's premier educational institutions. Now, second college is founding of Hindu College in 1870s, sons of respectable Hindus. इस कॉलेज में बड़े बड़े अपर क्लास के रिस्पेक्टेबल हिंदूज, अपर क्लास कास्ट के या अपर क्लास के लोग के बच्चे पढ़ा करते थे और इंग्लिश पढ़ा करते थे। यहाँ पे एक टीचर थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, HLV डेरोजियो। इनका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। हिंदू कॉलेज से एसोसिएट करते हैं ब्लॉग HLV डेरोजियो एक फ्री थिंकर थे। इनका कमांड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा था, लिटरेचर से बहुत फैमिलियरिटी थी और ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही फ्री थिंकिंग देते थे, जिनके वजह से ये बहुत ही कम एज में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में इंग्लिश का ओरिजिन की फर्स्ट थिंग्स की। फर्स्ट बुक कब आई इंडियन राइटर में, फर्स्ट नॉवल कौन सी थी, फर्स्ट पोएम कौन सी थी, वुमेन मैन, ये सारी बातें। तो फर्स्ट बुक इन इंग्लिश बाय एन इंडियन राइटर इज द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद इज बाय शेख दीन मोहम्मद, which is published in 1794 in form of a series of letter to a fictive friend. Series of letter. Now this work is by an Indian writer in English, that's why it is first by an Indian writer, first in English, in form of a letter. Now when any work is in form of a letter, then we call it epistolary work. Epistolary means in letters. Now this work is based on his experiences in the colonial army. उस समय इंडिया में क्या चल रहा था, ब्रिटिशर्स रूल चल रहा था और हम ब्रिटिशर्स के लिए दूसरे कंट्रीज़ में एक सोल्जर के रूप में इंडियन पीपल लड़ा करते थे। तो शेख दीन मोहम्मद भी एक सोल्जर थे जो एक कॉलोनियल आर्मी से एसोसिएट करते थे। उन्होंने इंग्लिश को पढ़ा और उन्होंने ये वर्क द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद लिखा। अब बात करते हैं फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, जो कि है राजमोहन वाइफ्स और लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के चट्टोपाध्याय के द्वारा। 1864 में ये वर्क पब्लिश होती है। फर्स्ट इंडियन नॉवेल कौन सी है, इंडियन वुमेन के द्वारा। फर्स्ट इंडियन नॉवेल इंडियन मैन राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडियन वुमन राइटर इज तोरू दत्त, whose work is Bianca or the Young Spanish Maiden, published in 1878. दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है और UGC नेट एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पूछ ली गई थी। सो रिमेंबर इट। नाउ वी विल कम, our next topic is Sir William Jones.
Sir William Jones is an Orientalist. He is an just opposite of Raj Mohan Roy. Raj Mohan Roy is an Indian but Anglicist. Support English. Sir William Jones is an Western. He is a British but support English, vernacular Hindi, Sanskrit language in India. So he was arrived in India in 1783 in Calcutta and appointed as judge to the Supreme Court, Calcutta at Fort William. Now, if we talk about him, he is a philologist, judge of Calcutta, born in Westminster, London. इंडोलॉजिस्ट. इंडोलॉजिस्ट क्या है? एक फील्ड है स्टडी का जहाँ पे हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की हिस्ट्री और हिस्ट्रीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं. तो सर विलियम जोन्स इंडोलॉजिस्ट थे, फिलॉलॉजिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट थे, जज थे, लंदन में पैदा हुए, इंडिया में 1783 में आते हैं. नाउ एक ये पॉलीमैथ्स भी थे. पॉलीमैथ मतलब जिनको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है और एक बहुत ही डीप नॉलेज होती है. उनका एक पेन नेम था जॉन्स ऑफ ऑक्सफोर्ड. ये जॉन्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है. सर विलियम जोन्स एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते थे. उनमें से पहली है लैटिन, दूसरी इंग्लिश, फिर संस्कृत, फिर पर्शियन. ये सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने मास्टरी की थी. सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता फाउंड की थी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी. 1783 में वो इंडिया आते हैं, 1784 में वो एशियाटिक सोसाइटी बनाते हैं. तो ये याद रखेंगे. उसके बाद उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है सर विलियम जोन्स की ट्रांसलेशन ऑफ शकुंतला, फर्स्ट इन लैटिन देन इन इंग्लिश. शकुंतला और द फेटल किंग, ये 1798 में उन्होंने शकुंतला को ट्रांसलेट किया था, लैटिन में फिर इंग्लिश में. शकुंतला ओरिजिनली कालिदास के द्वारा लिखी गई है शकुंतला, और उन्होंने उसको एक शकुंतला द फेटल किंग इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने. तो सर विलियम जोन्स ने किसके ट्रांसलेटर हैं? शकुंतला के. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप नोट करेंगे. नाउ अगर हम विलियम जोन्स की हिस्ट्री को देखते हैं तो अभी मैंने बताया कि वो 1783 में आते हैं, जज बनते हैं. 20 मार्च 1783 में वो नाइटेड हो जाते हैं. 1783 में वो मैरी भी करते हैं एना मैरिया सिफली से. और 83 में फिर वो 25 सितंबर 83 में वो कलकत्ता आ जाते हैं. अब ये पहले राइटर, ये पहले वेस्टर्न पीपल क्या कह सकते हैं, विलियम जोन्स एक ऐसे राइटर या ऐसे थिंकर रहे हैं जो इंडिया आए और उन्होंने इंडिया में देखा कि संस्कृत में पाली, वेदास, ये सारी चीज़ें बहुत अनटच्ड हैं, किसी ने इन पे रिसर्च नहीं की. तो वो पहले आदमी बने जिन्होंने इस पर रिसर्च की, डीपली इसे पढ़ा. तो ये बहुत ही सर विलियम जो अपोजिट हैं हमारे मकौले से. मकौले इंडिया के बारे में कुछ नहीं जान के भी एक बहुत ही रूथलेस स्टेटमेंट देते हैं, और सर विलियम जोन्स इंडिया आते हैं और वह संस्कृत पढ़ते हैं. तो इंटरेस्ट बाय इंडियन कल्चर, वांटेड टू स्टडी डीपली, स्टडीज वेदा, स्टडीज संस्कृत. वेदा कहाँ पढ़ते हैं वो? रामालोकना
एक पंडित हैं जिन्होंने उन्हें वेदा पढ़ने में हेल्प किया हिंदू यूनिवर्सिटी नादिया में। संस्कृत वो पढ़ते हैं और एक प्रोफिशिएंट संस्कृतिस्ट बनते हैं। अब वह 10 ईयर का कॉरस्पॉन्डेंस भी करते हैं और उसका टॉपिक होता है ज्योतिष और हिंदू एस्ट्रोनॉमी, जो वह सैमुअल डेविस के साथ करते हैं। वो लर्न करते हैं कई सारे एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉज फ्रॉम पंडित्स। तो वो सर विलियम जोन्स पूरे इंडिया में आके इंडिया की हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो फाउंडेशन रखते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का। उनका एक वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, 3rd एनिवर्सरी डिस्कोर्स 1786। तो सर विलियम जोन्स का पहला खुद का वर्क है जो 3rd एनिवर्सरी डिस्कोर्स 1786 का, जो कि असर्ट करता है संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज come from a common source which perhaps no longer exists. And then he proved it also कि संस्कृत का, ग्रीक का, लैटिन लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है, जो कॉमन सोर्स है, वो कॉमन है, जो सोर्स है वो कॉमन है हिस्ट्री से ही। और वह डिफाइन करते हैं कि इनका नोशन ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्रल लैंड भी है, एक ही लैंड था जहाँ पे ग्रीक, संस्कृत और लैटिन बोला जाता था। अब ये तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रांसलेशन करते हैं सर विलियम जोन्स शकुंतला का, जो कालिदासा का प्ले है। कालिदासा का प्ले है 4 वर्जन्स में, बंगाली, साउथर्न, कश्मीर, देवनागरी में। लेकिन जोन्स जो है बंगाली वर्जन पढ़ते हैं और फिर वह लैटिन में और फिर इंग्लिश में शकुंतला और फेटल किंग को ट्रांसलेट करते हैं। अब ये हमारा इंडियन लिटरेचर का पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हेनरी डेरोजियो के बारे में और पढ़ेंगे, माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में पढ़ेंगे और भी राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं अपने सारे UGC नेट के नोट्स आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी और इसी तरह हम 30 मिनट्स के डेली वीडियो के साथ अपने सारे यूनिट्स कवर कर लेंगे। इफ़ यू find this video helpful, please like and subscribe. Thank you.